Students, good morning. Welcome to my class of SST 9th Social Studies. The topic of discussion is today the French Revolution. We are now going to end up with this third part of French Revolution. And in the first two parts, I have given you what were the causes of the French Revolution, what strategy was prepared, and all I have discussed with you in detail. So we are going to start with our topic. Now the French Revolution has broke out, and what were the consequences and what were the results of the French Revolution. Now let us begin with the topic. Role of women in the French Revolution. From the starting only we have seen that the women have actively participated in the French Revolution. They have brought about the fundamental changes in the society. They were of the view that their profession could force the revolutionary government to introduce methods to improve their conditions. Most of the women of the third section of the society had to work hard to earn their livelihood for their families. They used to sell vegetables, flowers, work in laundries. They worked as domestic servants in the houses of the rich person. Those women who were not educated, they took professional training. Only the daughters of the nobles and the wealthy persons of the third section of the society could study at convent. Working women had to do household work, that is, cook food, fetch water, queue up for bread, and take care of the children. The wages were low as compared to that of men. Now I am going to explain you my points one by one. हम लोगों ने जैसे देखा from the starting only the women of the France, उन लोगों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट करा है एंड दे हैव ब्रॉट अबाउट अ फंडामेंटल चेंज इन द सोसाइटी. इससे पहले किसी ने भी फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं करी थी. तो जो ये वुमेन थी फ्रांस की जो एक्टिव पार्टिसिपेट थी इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन, दे हैव टॉक फर्स्ट अबाउट द फंडामेंटल चेंजेस शुड ब्रिंग इन द सोसाइटी. सेकेंड पॉइंट है आपका, दे वर ऑफ द व्यू that the profession would force the revolutionary government to introduce method to improve their condition a lot. अब क्या बोल रहा है कि जो ये लोग प्रोफेशनल्स तो थे, ये लोग काम कर रहे थे, उनके अनुसार they would force the revolutionary government to introduce the method to improve their condition. कह रहे कि जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी उनको फोर्स कर दिया जाएगा कि वो मतलब चेंजेस लाए इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द वुमेन. Most of the women of the third section of the society had to work hard to earn their livelihood for their families. अब कह रहे हैं कि जो ये वुमेन थी, मोस्ट ऑफ द वुमेन वर ऑफ वर्किंग क्लास. वो लोग अपने घर की फैमिली को मतलब रन करने के लिए पैसे कमाती थी और वो पैसे कमाती थी, ठीक है. और वो क्या काम करती थी? दे यूज़ टू सेल वेजिटेबल, फ्लावर्स, वर्क इन लॉन्ड्रीज. दे वर्क एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स इन द हाउस ऑफ द रिच पर्सन. वो लोग क्या करते थे? सब्जियां बेचती थी, फल बेचती थी और लॉन्ड्रीज वगैरह के अंदर काम करती थी. उसके अलावा दे वर वर्किंग एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स इन द हाउसेज ऑफ द रिच पर्सन. क्लियर एवरीबडी? फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है? दोज वुमेन हु वर नॉट एजुकेटेड दे टुक प्रोफेशनल ट्रेनिंग. और ये जो लेडीज़ थी जो मतलब वर्क कर रही थी वो एजुकेटेड थी. इनमें से कुछ सेक्शन ऐसा था जो अनएजुकेटेड था. तो उन लोगों ने क्या करा? उन लोगों ने क्या अडॉप्ट करी? प्रोफेशनल ट्रेनिंग. Only the daughters of the nobles and the wealthy person of the third section of the society could study at convent. अब कह रहे हैं कि ये जो wealthy persons थे और जो nobles थे, उन्हीं की बेटियाँ कहाँ पे पढ़ने के लिए जा रही थी? कॉन्वेंट के अंदर. फिर सेवेंथ पॉइंट है आपका, वर्किंग वुमेन हैड टू डू हाउस होल्ड वर्क.
दैट इज़ कुक फूड, fetch water, queue up for bread and take care of children। जो वर्किंग वूमेन थी उनको अपने घर का भी काम करना पड़ता था। कैसा काम घर का? खाना बनाना, पानी लेके आना, राशन की लाइनों में खड़ा कर होना और अपने बच्चों की देखभाल करना। और इसका सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक ये था कि जो औरतें काम कर रही थी और उस टाइम में आदमी लोग भी काम कर रहे थे, लेकिन जो औरतों की पेमेंट थी ना वो किससे कम थी? मैन से कम थी। द वेजेस वर लो एज कम्पेयर टू ऑफ मैन। क्लियर एवरीबडी? 8 पॉइंट्स आपको क्लियर है? 1 मिनट में आप गो थ्रू हो जाइए और मतलब देख लीजिएगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया। फिर मैं आपको 9-10 पॉइंट करवाऊंगी। ठीक है, जल्दी करो बेटा, 2 मिनट में। येस, आई हैव एक्सप्लेन यू इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, ताकि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि ये टॉपिक हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इस वाले टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन पेपर में। सो आई एम डूइंग माई वर्क अर्नेस्टली एंड ऑनेस्टली एंड आई वॉन्ट योर रिस्पॉन्स टू बी 100%। और ईज़िली आपको मैंने सब कुछ सिंपल लैंग्वेज एक्सप्लेन कर दिया है ताकि आपको किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। चलो बेटा, नाउ वी आर मूविंग टू द 9th पॉइंट। Women started their political clubs and the newspapers to discuss and voice their demand। अब क्या हुआ? जब ये वुमेन वगैरह काम पे जाने लग गई, इन लोगों ने पॉलिटिकल क्लब फॉर्म कर लिए और कुछ वुमेन इनमें से थी जो न्यूज़पेपर्स में लिख रही थी और वो अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रही थी और अपनी डिमांड्स को लोगों के गवर्नमेंट के आगे बताने की कोशिश कर रही थी। Their one major demand was that they should get the same political right as men। इनका सबसे एक मेजर मतलब वो पॉइंट था जिसकी के मतलब अगेंस्ट उन्होंने आवाज़ उठाई थी। वो क्या था कि जिस तरीके से मेन को राइट दी जा रही है पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट में, उसी तरीके से वुमेन को भी राइट दी जाए ताकि वो भी मतलब पॉलिटिकल फील्ड के अंदर काम कर सके। द वुमेन डिमांडेड द राइट टू वोट। सबसे पहले उसके लिए उन्होंने क्या करा? वोट, राइट टू वोट की, उनको भी वोट की मतलब वोट की परमिशन देनी चाहिए ताकि जब इलेक्शन हो तो वो भी अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सके और उनके थ्रू जो पर्सन इलेक्ट हुआ है ही शुड ऑल्सो होल्ड द पॉलिटिकल ऑफिस। क्लियर? तो ये हमारा रोल था वुमेन का इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्योंकि इन लोगों ने शुरू से ही फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग में पार्टिसिपेट करा था और इनके पार्टिसिपेशन से बहुत सारे फंडामेंटल चेंजेस आए थे सोसाइटी के अंदर। और वो मैंने आपको 11 पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो अब आपको इस पॉइंट में तो कोई डिफ़िकल्टी आएगी नहीं। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन, राइज ऑफ नेपोलियन। The Republican government was formed by the Jacobins in France, but it did not last long। अब क्या हुआ? रिपब्लिक गवर्नमेंट फॉर्म हो गई फ्रांस के अंदर। वो किसने फॉर्म करी? जैकोबिन्स ने फॉर्म करी, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं चली। क्यों नहीं चली? क्योंकि आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया था ना, जैकोबिन्स गवर्नमेंट का जो पीरियड था वो क्या कहलाता था? रेन ऑफ टेरर कहलाता था। जो लीडर आपका इलेक्ट हुआ था उसने देखा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ उसके अगेंस्ट हैं और जो लोग उसकी बात नहीं मान रहे हैं, तो उसने उन लोगों का क्या करवा दिया था? मरवा दिया था। तो इसका जो रेन था वो क्या कहलाता है आपका? रेन ऑफ टेरर। आफ्टर द फॉल ऑफ द रिपब्लिकन गवर्नमेंट अ 5-member एग्जीक्यूटिव यूनिट वॉज फॉर्म्ड विच वॉज कॉल्ड डायरेक्टरी। अब क्या हुआ? रिपब्लिक गवर्नमेंट फॉर्म मतलब गिर गई और डिस्ट्रॉय हो गई और 5 मेंबर्स की एक एग्जीक्यूटिव फॉर्म हुई और उसको क्या कहा गया? डायरेक्टरी। पर इसका भी ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि जो मेंबर्स थे वो लोग आपस में लड़ने लग गए। इसके कारण जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी डेवलप हो गई फ्रांस के अंदर और रिज़ल्ट क्या हुआ कि दिस ऑल्सो डिक्लाइन। उसका रिज़ल्ट क्या हुआ
कि emergence of the military dictator Napoleon Bonaparte came into force। अब क्या हुआ, जब नेपोलियन ने देखा कि ये लोग तो ढंग से कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, आपस में लड़े जा रहे हैं ऑल, तो उसने इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाया। वो एक मिलिट्री डिक्टेटर के फॉर्म में मतलब लोगों के सामने आया और उसने अपने आप को क्या करा, डिक्लेयर करा एम्परर ऑफ फ्रांस इन 1804। ठीक है, तो अब पहले जब वो एम्परर बना तो उसने बोला कि सबसे पहले तो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्या है कि मैं लोगों की गुडविल जीतूं। तो उसके लिए उसने ना मतलब शुरू में लोगों के बेनिफिट्स के लिए काम करने लगा, तो लोगों को लगा कि ये हमारा मतलब वेल विशर है एंड ऑल। देखा जब उसने कि मैं बिल्कुल स्टेबल हो गया हूँ, अब लोग मेरी बात मानने लग गए हैं और मैंने मतलब रूल भी मतलब अच्छे से मैं कर पा रहा हूँ, तो उसने क्या प्लान करा, कॉन्करिंग द नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज़। अब उसने जो नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज़ थी ना, उसको उसने क्या करा, कॉन्कर करना शुरू करा और वो वहाँ पे उसने छोटी छोटी किंगडम्स बना दी और जो उसके रिलेटिव्स थे, फैमिली रिलेटिव्स थे, उनको वहाँ पे क्या कर दिया, अपॉइंट कर दिया एज अ किंग। ही सेड दैट ही, और फिर जब उसने ऐसा करा तो लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाना शुरू करने लगा, तो फिर उसने लोगों को क्या जवाब दिया कि इसका कोई ऐसा वैसा इंटेंशन नहीं है कि पूरे यूरोप को वो कॉन्कर करे, बल्कि उसका एक इंटेंशन है, ही वांट टू मॉडर्नाइज यूरोप। आप रिज़ल्ट क्या, मॉडर्नाइज यूरोप। तो लोगों को लगा भाई ये नए नए तरीके अपनाना चाहता है, नए नए मतलब रूल्स इंट्रोड्यूस करना चाहता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक, तो फिर लोगों ने इसका ज़्यादा अपोज़ नहीं करा। तो इसके कारण इस चीज़ को देखते हुए उसने बहुत सारे लॉज इशू करे और वो लॉज जो 3 इम्पॉर्टेंट थे वो मैं आपको बताती हूँ। प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, सबसे पहला क्या था, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करा जाएगा। अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट, जो हम लोग सामान वगैरह ख़रीदने जाते हैं ना, तो उसके अंदर ना एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया वेट का। फिर थर्ड क्या था आपका, मेजर प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम, और उसने डेसिमल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा और उसके अंदर उसने पैसे वगैरह लोगों से लिए ताकि लोगों को लगे भी नहीं कि वो उनके साथ कुछ इनजस्टिस कर रहा है। इन द बिगनिंग द पीपल थॉट नेपोलियन टू बी अ लिबरेटर, मतलब शुरू में लोगों को लगा कि ये बहुत लिबरल है, ये हमारे बेनिफिट के लिए काम कर रहा है, और इस लिबरेटर हु कुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल, और ये एक ऐसा पर्सन है जिसके अंडर में हमको क्या मिल सकता है, फ्रीडम मिल सकता है। बट वॉट पीपल नोटिस दैट नेपोलियन आर्मी केम टू बी सीन एवरीवेयर, धीरे धीरे लोगों ने नोटिस क्या करा कि जो नेपोलियन आर्मी हैगी है वो पूरे यूरोप को कवर कर रही है। ठीक है, और फिर एक बैटल फाइट हुई थी वाटरलू के अंदर, और उसके अंदर नेपोलियन क्या हो गया था, हार गया था। और ये जो बैटल थी वो कब फाइट हुई थी, इन 1815। क्लियर माई क्लास? Yes, his policy carried the revolutionary idea of liberty and modern laws to the other part of Europe, which had left a great impact on the people. जो इसके revolutionary ideas थे for freedom and for framing the modern laws, जो थे वो फ्रांस के अंदर ही नहीं सीमित थे, बल्कि it was spread to the other part of Europe, अदर पार्ट ऑफ यूरोप। और जो लिबर्टी, जो फ्रीडम के आइडियाज़ थे, उन लोगों ने लोगों के दिमाग के ऊपर क्या करा था, बहुत बड़ा असर छोड़ा था। उनको रियलाइज़ करने पे मजबूर हो गया था कि अब हम किसी के अंडर नहीं रहेंगे, बल्कि वी आर गोइंग टू अचीव फ्रीडम। क्लियर क्लास? ओके, 2 मिनट के लिए आप रिवाइज करो फटाफट फास्ट, फिर अपन 11 टॉपिक डिस्कस करेंगे। सम फैक्ट्स रिलेटेड टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन। पहले गो थ्रू रोल ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट इन 2 मिनट्स, यू गो थ्रू एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ टॉपिक। यस, समझ में आ रहा है बेटा आपको? सिंपल है ना, ईजिली मैंने सबसे ईजी लैंग्वेज में करा है ताकि आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं हो।
Yes, beta. Let us now move further. Some facts related to the French Revolution. अब क्या हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन से ना रिलेटेड अब लोगों को ना इंट्रोड्यूस करे गए कुछ सिंबल्स. पहला सिंबल क्या था, पहला सिंबल था आपका ब्रोकन चेन. चेन वॉज यूज फॉर स्लेव्स. अ ब्रोकन चेन मीन्स द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री. एक ना सिंबल था आपका ब्रोकन चेन का. जनरली हम जो चेन किसको बांधते हैं, जो कि हमारे अंडर में होते हैं, और उस टाइम में वहाँ पे कौन थे, उनके अंडर में स्लेव्स थे. तो उन्होंने क्या करा, उस चेन को क्या करा, तोड़ दिया, और लोगों को ये बताने की कोशिश करी कि अब हम तुम्हारे अंडर में नहीं रहेंगे, बल्कि वी वांट टू बिकम फ्री. द आई विद इन अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट. सेकेंड सिंबल था आपका द आई विद इन अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट. All seeing eye stands for knowledge. Rays of the sun will drive away the cloud of ignorance. कह रहे हैं कि जैसे जो लाइट, वो जो एक आँख है वो आपके ट्रायंगल के बीच में थी, और उसके ऊपर ना रेज आ रही थी लाइट की, और वो रेज किसकी कहा गई है, रेज ऑफ द सन. और वो बोल रहे हैं कि जो ये रेज ऑफ द सन है, जो हमारे मतलब क्लाउड ऑफ इग्नोरेंस है, क्लाउड ऑफ मतलब जो हमको कुछ भी चीज़ मालूम नहीं है, उस रेज, वो जो सन की रेज हमारे पे पड़ेंगी तो जो हमारी इग्नोरेंस है वो क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी. समझ में आया बेटा. स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग. इट मीन्स द सिंबल ऑफ एटर्निटी बिकॉज अ रिंग हैज़ नाइदर अ बिगनिंग नॉर एन एंड. ये आपका स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, इसका मतलब था अ सिंबल ऑफ एटर्निटी. जो रिंग है ना तो उसकी बिगनिंग है ना कोई एंड है. ब्लू वाइट रेड, ये जो तीन कलर्स हैं, दे वर द नेशनल कलर्स ऑफ द फ्रांस. द लॉ टैबलेट, ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ विच इज़ इक्वल टू ऑल. जो कह रहे हैं कि जो फ्रांस का लॉ हैगा है वो सबके लिए क्या है, एक बराबर है. वो सबको क्या ट्रीट करता है, इक्वली ट्रीट करता है. क्लियर क्लास. यस. अब नेक्स्ट हमारा वो एफ वाले पॉइंट पे आ रहा है आपका बंडल ऑफ रॉड्स. वन रॉड कैन बी ब्रोकन ईजली बट द एंटायर बंडल ऑफ रॉड्स कैन नॉट. तो कह रहे, आप लोगों ने एक स्टोरी पढ़ी थी ना, यूनिटी इन स्ट्रेंथ. जो फादर होता है वो अपने मतलब बेटों को अलग अलग लकड़ियाँ देता है. जो एक एक लकड़ी होती है वो ईज़िली टूट जाती है, लेकिन वो बंडल ऑफ लकड़ियों को नहीं तोड़ पाते हैं. तो यहाँ पे बंडल ऑफ लकड़ियों की जगह इन्होंने क्या यूज़ करा है, रॉड्स. कह रहे जो एंटायर मतलब एक एक जो रॉड है वो ईज़िली टूट सकती है, लेकिन बंडल ऑफ रॉड्स है वो ईज़िली नहीं टूट सकती है, ईज़िली नहीं टूट सकती है. और इससे हमको क्या सिग्निफाई होता है, इट सिग्निफाइज यूनिटी. स्क्रिप्चर सिग्निफाइज रॉयल पावर. ये जो साइन था ये शो कर रहा था आपका रॉयल पावर. रेड हैगियन कैप, दिस कैप वॉज worn by the slaves. After slavery was abolished they become free. तो जब पहले ये एक कैप थी जो कि स्लेव्स पहनते थे, लेकिन जब स्लेवरी अबॉलिश हो गई, स्लेवरी ख़त्म हो गई, तब ये मतलब ये यूज़ करी जा रही थी फ्रीडम शो करने के लिए. द रिंगेड वुमन सिग्निफाइज एंड द पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ. ये जो वुमेन थी ये क्या सिग्निफाई कर रही थी, लॉ को रिप्रेजेंट कर रही थी. इज़ इट क्लियर टू यू बेटा. पहले हमने क्या डिस्कस करा है, रोल ऑफ द वुमेन इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन. सेकंड टॉपिक हमने क्या डिस्कस करा है, नेपोलियन बोनापार्ट. और थर्ड हमने क्या डिस्कस करा है, पॉलिटिकल सिंबल्स यूज बाय इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन. एक बार गो थ्रू हो जाओ पॉलिटिकल सिंबल से, और ताकि फिर मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर सकूं. क्लियर माय क्लास. चलो बेटा अब हम करेंगे जैकबिन्स. बी पार्ट है जैकबिन्स.
Revolutionary war has caused losses and economic difficulties to the people. ये भी मैंने आपको पॉइंट्स में करवा रही हूँ ताकि आप इजली याद कर सको. ये जो रेवोल्यूशनरीज थे इन लोगों ने बहुत सारे नुकसान करे थे. सबसे ज़्यादा नुकसान किस में हुआ था लोगों को? इकोनॉमिक फील्ड के अंदर. Men were fighting at the front and the women were left to deal with the task of earning livelihood for their families. जो फ्रांस के जो आदमी थे ना, जो मैन थे वो लोग लड़ाई कर रहे थे इन द वॉर, और जो वुमेन थी वो बिहाइंड थी, वो अपनी फैमिली को रन करने के लिए, लाइवलीहुड को रन करने के लिए पैसे कमा रही थी. They want to take the revolution further because the Constitution of 1791 gave political rights only to the active citizens who were rich. थर्ड पॉइंट में ये क्या बोल रहा है? ये वो जो रेवोल्यूशन है उसको वो फर्दर लेके जाना चाहते थे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 पॉलिटिकल राइट्स सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स को दी थी और जो कि रिच थे. फोर्थ पॉइंट में बता रहा है पॉलिटिकल क्लब्स बिकेम एन इम्पॉर्टेंट प्लेस for the people to discuss government policies and to make their own preparation for line of action. जो पॉलिटिकल क्लब्स ऑर्गेनाइज हुए थे इन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा था. यहाँ पे आके लोग अपनी क्या करते थे? डिस्कशन करते थे अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसीज़, और उसके बाद फिर वो प्रेपरेशन करते थे कि अब उनका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा. मोस्ट फेमस क्लब अमंग देम वॉज जैकोबिन्स. जो सबसे फेमस क्लब था उस टाइम का वो क्या था आपका? क्लब ऑफ जैकोबिन्स. मेंबर ऑफ जैकोबिन्स बिलोंग टू स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिशंस सच एज शू मेकर, पेस्ट्री कुक, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स एज वेल एज सर्वेंट्स एंड डेली वेजेस वर्कर्स. आपके जो ये जैकोबिन्स के मेंबर्स थे वो कौन थे? आपके स्मॉल शॉपकीपर्स थे, आर्टिशंस थे, शू मेकर्स थे, पेस्ट्री कुक्स थे, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स, और जो सर्वेंट्स थे वो जो डेली काम करते थे डेली वेजेस पे. दे वर द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब. द लीडर वॉज रॉबेस्पेरी. अब क्या हुआ? जो इस जैकोबिन क्लब का जो लीडर था वो कौन था? आपका रॉबेस्पेरी. और उसने एक यूनिफॉर्म इंट्रोड्यूस करी थी, और वो यूनिफॉर्म के इन जो जैकोबिन क्लब्स के थे लोग उनको वो यूनिफॉर्म पहननी थी ताकि वो दूसरों से क्या लगे? बिल्कुल अलग लगे. क्लियर क्लास? चलो जी, अब हमारा सी पॉइंट आ रहा है. एक रेवोल्यूशनरी वुमेन बड़ी फेमस हुई थी उस टाइम में, उसका नाम क्या था? ओलंपी डी गॉयस. शी वॉज द मोस्ट परमानेंट पॉलिटिकली एक्टिव वुमेन इन रेवोल्यूशनरी फ्रांस. ये एक वुमेन थी जो बहुत फेमस थी, जो एक्टिव पार्टिसिपेंट थी इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन. क्लियर क्लास? She raised voice against the Constitution and the Declaration of the Rights of Man and Citizen. ये थी, इसने एक वॉइस रेज करी थी. उसके अंदर बोला था कि मैन और सिटीजन्स को बराबर राइट दी जानी चाहिए, और इसके अंदर क्या बोला था उसने कि वुमेन को भी बेसिक राइट मिलनी चाहिए जैसे कि मैन को मिलनी चाहिए. और उसने एक बुक लिखी, एक मतलब डिक्लेरेशन करा था, Rights of the Woman and the Citizen in 1791, in which she addressed the Queen, the members of the National Assembly, as she was criticizing the Jacobin government. She was closing the which was closing the Women Club. आप इसने क्रिटिसाइज ओपनली किसको करा था? जैकोबिन क्लब को, क्योंकि जो जैकोबिन क्लब था वो मतलब वो वुमेन क्लब को जो ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी उसको वो क्या कर रहा था? उसको अबॉलिश करना चाहता था, उसको क्रिटिसाइज़ कर रहा था. और धीरे ही धीरे वो जो वुमेन थी वो आने वाले टाइम में इनके लिए क्या बनने वाली थी? खतरा बनने वाली थी.
for which she was punished and later on given the death sentence by the government. और इसके कारण उसको आगे जाके पनिशमेंट मिला और उसको डेथ सेंटेंस मिला by the government. According to her, some of the basic rights set forth in Gorgeous Declaration: woman is born free, she is equal to man. The goal of all the political association is to protect the rights of the woman and men. These rights are liberty, property and security. Sources of all sovereignty reside in nation. ये इसके 3 पॉइंट्स थे जो कि इस पर इसने क्या करा था, स्ट्रेस करा था. अब मैं आपको बताने वाली हूँ आपकी इम्पॉर्टेंट डेट्स जो बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसके ऊपर वन लाइन का क्वेश्चन बन सकता है या वन वर्ड का क्वेश्चन बन सकता है. तो बेटा आप देखो, मई 10 1774 को क्या हुआ था, जो रॉयल फैमिली थी वो फ्रांस छोड़ के भागने की तैयारी में थी. लुइस 16 ascended the throne of France on September 3, 1791. On May 5, 1789, France became a constitutional monarchy. Or convection of the State General was done on September 21, 1792. June 17, 1789, monarchy was abolished and France became a republic. Tennis court oath was taken on January 21st, 1793. अब स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल, आपको मालूम है ना बेस्टाइल के अंदर क्या होता, प्रिजनर्स को खोल दिया गया था और फिर क्या हुआ था, लुइस 16 को मर्डर हो गया था. वो कब हुआ था आपका, स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल में. French Constitution was framed on August 4, 1789 और 1794 reign of terror ruled by Robespierre. August 26, 1789 July Declaration of the Rights of Man कब हुए थे आपके, जुलाई 27, 1794 एग्जीक्यूशन ऑफ रॉबेस्पेरी को मार दिया गया था. अक्टूबर 5, 1789 नेपोलियन बोनापार्ट बिकेम द एम्परर ऑफ फ्रांस. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सिंगल मतलब वन वर्ड के अंदर आ सकता है या पूछा जा सकता है. व्हेन डिड नेपोलियन बिकेम द एम्परर ऑफ फ्रांस, तो इसमें आप क्या लिखोगे, ऑन अक्टूबर 5, 1789. मार्च ऑन वर्सलाई, मार्च ऑफ वर्सलाइज कब हुई थी, फरवरी 26, 1850 में, जब नेपोलियन बोनापार्ट वॉज डिफीटेड एट द वाटरलू फाइट. जून 20, 1791 जुलाई 1946 फ्रेंच वुमेन गॉट द राइट टू वोट. 1791 में जो फ्रेंच वुमेन थी उनको राइट दी गई थी वोट की. तो विद दिस आई हैव एंडेड माई चैप्टर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चन आंसर्स. हाँ, अब पहला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, व्हाट वाज द रोल ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन फ्रांस. तो इसके अंदर मैंने आपको 11 पॉइंट्स करवाए ना, और शुरू की जो स्टार्टिंग थी बेटा, यस ये देखो, दे फ्रॉम द स्टार्टिंग ओनली द वुमेन ऑफ फ्रांस एक्टिवली participated in the French Revolution. They brought fundamental changes in the society. ये जो आपके 11 पॉइंट्स हैं, जो आपको कोई से भी 6 या 8 ईजी लग रहे हैं, वो आप इसमें इस आंसर में आप लिख सकते हो. सेकेंड क्वेश्चन है, शॉर्ट राइज ऑन द गिव अ शॉर्ट नोट ऑन द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट. हाउ डिड ही बिकेम अ डिक्टेटर. जो आपका पॉइंट है नेपोलियन, राइज ऑफ नेपोलियन, ये आपको इसमें पूरा लिखना है. इसके 3 लॉज भी लिखने हैं, कैसे वो डिक्टेटर बना,
ये पूरा सब कुछ आपको इसके अंदर लिखना है। क्लियर स्टूडेंट्स? फिर उसके बाद है व्हाट डू यू नो अबाउट जैकबिन्स। जो अभी हम लोगों ने जैकबिन्स के बारे में पढ़े 7 पॉइंट्स दैट यू हैव टू राइट इन दिस आंसर। ओके, अब है हु वॉज ओलम्पी डी गॉयस। ये अभी मैंने आपको करवाया ना, ये वाला। ओलम्पी डी गॉयस was the most permanent politically active woman in the Revolutionary War France. She raised voice against the Constitution and Declaration of the Rights of the Man and the Citizen, as they had not given women the basic right that each human being should be given. ये पूरा आपको यहाँ तक इसके 3 पॉइंट्स लिखने हैं। समझ में आ गया बेटा? आप इजीली कर लोगे होमवर्क। मैं चाहती हूँ आपका ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो। और कोई, अब तो आपको मैंने पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर दिया है, क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन कर दिए हैं। मैं चाहती हूँ कि आपकी बार बहुत मतलब बच्चों का रिस्पांस मिले। और जो आपकी 9th की इंग्लिश की बुक है वो NCERT की बुक की है। और आज हमने अपना फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो टॉपिक है वो मतलब फिनिश कर दिया है। और in my next class I am going to start with the geography topic that I am going to tell you in my next class. All of you have to do your homework nicely. सारे questions आपको attempt करने हैं। सब कुछ आपके पास मटेरियल अवेलेबल है। अगर आपको एक बार समझ में नहीं आता है तो आप दूसरी बार समझो, तीसरी बार समझो, और आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज़ करी है। मैंने बुक की कोई लैंग्वेज यूज़ नहीं करी है। और ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन सारे क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से करना और अच्छे से राइट करना विद द हेडिंग। और इसके अंदर अगर हो सके तो आप अगर पॉइंट्स में अगर आप आंसर लिखोगे ना तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि इससे आप इजीली लर्न कर सकोगे और आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और चिल्ड्रन, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो सी माई वीडियो एंड सी माई लेक्चर not once, twice, but thrice. You can easily do all these questions very easily. So I hope you can do the question answers very nicely. And thank you. And have a nice day. And do the question and try to submit your work in large number. Okay, class? Okay, bye.